अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आई डू होप कि आप सब लोग जो है वो बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अपने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो बिल्कुल भरपूर तरीके से जो है उन पे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। आज हमारा फुल लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ पेपर है, मैंने लिख भी दिया है उसको। FLT नंबर 1 हम आज अपना करने जा रहे हैं और आपको पता है कि इसमें 10 MCQs होते हैं, एक पैसेज होता है। रिपीटेडली हम एग्जांपल्स कर चुके हैं, 10 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हम अपने रूटीन में कर चुके हैं। सो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं जी पैसेज। वी ऑल नो कि हमने बॉटम अप अप्रोच लेनी है, हंटर्स अप्रोच लेनी है। वो बच्चे जिन्होंने पहले लेक्चर्स कहीं मिस कर दिए हैं उनको एक बार फिर बता देता हूँ कि बॉटम अप अप्रोच जो है वो ये होती है कि पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं एंड देन वी लुक फॉर द पैसेज, देन वी गो एंड रीड आउट द पैसेज एंड लुक फॉर द आंसर। सॉरी, तो स्टार्ट करते हैं जी। द टोन ऑफ द ऑथर कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज प्लीडिंग, प्लीडिंग कहते हैं रिक्वेस्टिंग, आर्गुमेंटेटिव, आर्गुमेंटेटिव कहते हैं in which he argues, he debates something, then compassionate, compassionate that is full of mercy, full of compassion, and emphatic, emphatic means that he wants to emphasize some point. In paragraph 3, now do remember he is talking about paragraph 3, the specific paragraph। आपको याद होगा हमने reference to line, reference to paragraph questions किए थे जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इनमें आपने सबसे ज़रूरी चीज़ जो करनी होती है वो ये करनी होती है कि उसी पैरा तक अपने आप को कन्फाइंड रखना होता है। सो ही इज़ नाउ स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पैराग्राफ 3। इन पैराग्राफ 3 द ऑथर फाइंड्स स्टार्वेशन एंड डिहाइड्रेशन इंड्यूस्ड यूथनेसिया इज़ टू बी मोर इंसीडियस। इंसीडियस कहते हैं क्लेवर, कनिंग, इवल, डेविलिश के मानों में भी इस्तेमाल होता है। Euthanasia is legally considered to be a criminal act. The public's attitude towards euthanasia is becoming more positive. It often involves those who cannot protest, and the patient has asked to die with dignity. As used in paragraph 3, what is the best synonym for insidious, mischievous, treacherous, seductive, and apparent? Then the author maintains that death by withholding care is, withholding कहते हैं stopping, largely confined to hospitals, largely confined to the terminally ill, terminally continuously, the people who are repeatedly getting ill उसको हम कहते हैं, often requested by the family members and approved by living wills. As used in paragraph 7, which is the best definition of abridged, abridged in line 40. Now do remember he is talking about line 40, specific line. Trimmed, trimmed कहते हैं काट छांट कर देना, कट डाउन कर देना। curtail reduce के मानों में आता है, lengthen exaggerate के मानों में, and extended भी क्या आता है, exaggerate के मानों में। Then using the passage as a guide, it can be inferred that the author would find euthanasia less objectionable in cases in which the patient's death is imminent. Imminent कहते हैं predictable, that is impending, that now cannot be reverted, कोई ऐसी चीज़ जिससे अब जो है वो बचना नामुमकिन हो। The patient has left instructions in a living will not to provide care, and then the third one is the patient refuses to accept nourishment. अब नीचे ऑप्शन उसने दी हुई हैं 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, and 1, 2, 3. Now these are the reasons why he feels कि euthanasia जो है that is less objectionable. The main idea of paragraph 7 is that lawyers will be unable to prosecute or defend caregivers. No comprehensive right or wrong definition of euthanasia will exist. Using a subjective standard will make the decision to end an individual's life arbitrary. No boundary will exist between euthanasia and care omission. Then
Now we are talking about passage number 7. In the final paragraph, the author writes, despite the ravages of their disease, they are still our fellow human beings and deserve our care and respect. The main purpose of this statement is to prove a previous argument, illustrate an example, gainsay a later statement and justify an earlier statement. Gainsay कहते हैं prove, testify. Withholding life sustaining care is passive form of euthanasia to make patients invulnerable to death, a punishable offense or desperate alternative to euthanasia. The court found that a euthanasia case cannot be prosecuted if decision makers and the medical staffs are in concurrence. Concurrence कहते हैं in agreement. The relatives cannot afford the treatment of the patient. The cases lies without the jurisdiction. The life sustaining care proves insufficient to revive the health of the patient. So now we are done with the questions. Now we are coming towards the passage. The word euthanasia is of Greek origin and literally means a good death. Now I have already told you that in case of particular terminology, look out for the next one or two. ये मैंने ऑलरेडी आपको एलैबोरेट कर दिया है कि जहाँ भी कोई पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी आएगी उसके साथ की जो एक आध अगली लाइंस हैं उनको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मोर ऑफन देन नॉट वो उसमें कोई ना कोई उसकी एलैबोरेशन, कोई ना कोई एग्जाम्पल, कोई ना कोई हिंट आपको ज़रूर देगा. So euthanasia is a good death. The American Heritage Dictionary defines it. Now he is providing the definition. The author is providing the definition. The American Heritage Dictionary defines it as the act of killing a person painlessly for reasons of mercy. ठीक है, अब ये killing person for the reason of mercy ये भी चलें बता देता हूँ आप लोगों को. इसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरोन. ऑक्सीमोरोन क्या है? ये एक लिटरेरी टर्म है in which you combine two opposite or contradictory words. ठीक है, दो ऑपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को इकट्ठा मिला देते हैं. मसलन हम कहते हैं फुली empty. Now we all know that a thing can either be full or empty. हम कहते हैं completely इनकम्प्लीट. ये प्रोजेक्ट क्या है? मुकम्मल तौर पर नामुकम्मल है. ठीक है, सो इधर प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट, बट यहाँ हमने इनको क्या किया है? इनको इकट्ठा मिला दिया. अपने फर्स्ट ईयर की अपनी जो बुक है द रेन, पहली पोइम, उसमें इसको पढ़ा हुआ है. वो कहता है स्वीट नॉइज. अगर आपको याद हो तो वी ऑल नो दैट नॉइज कैन नॉट बी स्वीट एंड दैट समथिंग दैट इज नॉइज दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज स्वीट. सो वो क्या है? वो ऑक्सीमोरोन है. तो ये भी ऑक्सीमोरोन है, दैट यू आर किलिंग समवन बट फॉर द रीजन ऑफ मर्सी. सच किलिंग्स कैन बी डन थ्रू एक्टिव मीन्स सच एज administering a lethal injection or by passive means such as withholding medical care or food and water. अभी उसने आपसे पीछे एग्जांपल पूछी हुई है
कि withholding medical care, food or water. What is this? This is passive form of euthanasia, passive means of euthanasia. In recent years in the United States, there have been numerous cases of active euthanasia in the news. They usually involve the deliberate killing of ill or incapacitated person. Incapacitated कहते हैं disable, capacity से निकला ना, capacitated कौन से हैं? Who have the capacity, and incapacitated who do not have the capacity. तो वो disable लोग जो हैं उनको they usually involve the deliberate killing of ill or incapacitated persons by the relatives or friends who plead that they can no longer bear to see their loved one suffer. ठीक है? So who basically perform this euthanasia, or who are the main cause of this active euthanasia? It is relatives, family and friend. ये भी पीछे आपसे उसने पूछा हुआ है. Although such killing are a crime, the perpetrators are often dealt with leniently, softly by our legal system, and the media usually portrays them as compassionate heroes, compassionate, merciful, as compassionate heroes who take personal risk to save another from unbearable sufferings. So this is his idea, this is his approach, that he feels that although it is a ruthless thing, it is a brutal thing to kill someone, but still the media or the role of the judiciary or the attitude of the judiciary is quite lenient to all those persons. And the seeming acceptance of active forms of euthanasia is alarming, but we face a bigger, more insidious threat from passive forms of euthanasia. अब वो passive forms को भी इंसीडियस उसने पीछे आपसे लाइन में पूछा हुआ है. तो इंसीडियस का मतलब होता है बेसिकली इविलिश, डेविलिश, ठीक है, चीटिंग के मानों में भी, ट्रेशरी के मानों में भी जो है ये इस्तेमाल होता है. Every year in hospitals and nursing homes around the country, there are growing numbers of documented deaths caused by the caregivers withholding life-sustaining care. Withholding कहते हैं रोक लेना, कि वो जो केयर गिवर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने उसको बचाना है, वही क्या करते हैं, उसकी वो देखभाल रोक देती हैं. और withholding life-sustaining care, including food and water from vulnerable patients who cannot speak for themselves. अब ये भी उसने पूछा हुआ है कि पैसिव फॉर्म ऑफ यूथनेसिया किन के लिए अप्लाई किया जा रहा है? पेशेंट हु कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, जो को प्रोटेस्ट नहीं कर सकते. While it is illegal to kill someone directly, for example with a gun or a knife, in many cases the law has put its stamp of approval on causing death by omitting needed care. Omitting, expelling, कि आप अगर उसको छोड़ के, मतलब आप एक बंदे को ज़रूरत है दवाई की, आप उसको दवाई नहीं लेके दे रहे, ठीक है, या उसको खुराक की ज़रूरत है और आप उसे खुराक नहीं दे रहे, तो इट मीन्स यू आर किलिंग इट, यू आर डायरेक्टली किलिंग हिम. सो further, many states have living will laws designated to protect those who withhold treatment, and there have been numerous court rulings कहते हैं orders, which have approved of patients being denied care and even starved and dehydrated to death. Living wills क्या है कि बंदा अपनी ज़िंदगी में खुद ही क्या देता है कि जी मैं I want to go, I want to leave this world. Because such deaths occur quietly within the confines of hospitals. Confines कहते हैं limited areas. Confines of hospitals and nursing homes, they can be kept hidden from the public. Most euthanasia victims are old or very ill, so their deaths might be attributed to a cause other than the denial of care that really killed them. So this is another problem. He basically highlights another problem, that although they are deliberately killed by withholding the needed care, the needed medical care, but because they are already ill, so any disease can be blamed of killing those people. Further, it is often relatives of the patient who request the care to be withheld. So ये फिर बड़ा clearly mention कर रहे कि कौन लोग ऐसा करते हैं, ये relatives करते हैं. In one court case, the court held the decision to withhold life-sustaining care may be not only because by close family members, but also by a number of third parties, and that such decisions need not be reviewed by the judicial system if there is no disagreement between decision makers and medical staff. So this is a big ruling, big decision, that if the medical staff and the relatives, they are of the same opinion
that we should withhold its medical assistance, then no appeal can be made to any court, and that decision of euthanizing someone will be considered the final. The court went so far as to rule that a nursing home may not refuse to participate in the fatal withdrawal of food and water from an incompetent patient. Incompetent, again, incapacitated. Extraordinary or heroic treatment need not be used when the chance of recovery is poor, and medical intervention would serve only to prolong the dying process. Intervention कहते हैं interference. Now this is another opinion. वो क्या कहते हैं कि जब पता है कि इस बंदे ने नहीं बचना तो उसकी मौत को सिर्फ लंबा मज़ीद अजियतनाक बनाने की ज़रूरत नहीं है. But to deny customary and reasonable care or to deliberately starve or dehydrate someone because he or she is very old or very ill should not be permitted. Most of the cases coming before the courts do not involve withholding heroic measures from eminently dying people, eminently, impendingly, but rather they seek approval of for denying basic care such as administration of food and water to people who are not elderly or terminally ill but who are permanently incapacitated. Now वो जो एक डेफिनेशन उन्होंने की थी, राइटर का ये ख्याल है कि उसको मिसयूज़ किया जा रहा है. वो डेफिनेशन सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो कि बहुत इल हैं, बहुत टर्मिनली इल हैं, या फिर वो लोग जिनको बहुत इंटेंस मेडिकल केयर की ज़रूरत है और वो इंटेंस मेडिकल केयर भी जो है उनको बचाने के लिए सफिशेंट नहीं है. तो यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, जो इनकैपेसिटेटेड माजूर है, सपोज अगर डिसेबल है तो वो टर्मिनली इल नहीं भी है, तो लोग क्या करते जा रहे हैं, लोग उससे जान छुड़ाने के लिए उसको यूथनेसिया का शिकार करते चले जा रहे हैं. These people could be expected to live indefinitely, though in an impaired state. Impaired कहते हैं disabled. If they were given food and water and minimal treatment. No one has the right to judge that another's life is not worth living. The basic right to life should not be abridged. Abridged, ये उसने पूछा हुआ है पीछे. Because someone decides that someone else's quality of life is too low. अब ये क्या कह रहे हैं, पीछे हमने सारे ही जो डिस्कशन है वो किसके हो रही है, टू स्नैच समवन्स लाइफ, ठीक है, टू बेसिकली मिनिमाइज द चांसेस ऑफ समवन्स लाइफ, इसी पे हो रही है ना. तो ब्रिज का मतलब भी इसी से मिलता जुलता होगा. इफ वी बेस द राइट टू लाइफ ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड देयर इज नो लॉजिकल प्लेस टू ड्रॉ द लाइन. यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं कहते हैं कि अगर हम इसको बेस बनाएंगे तो फिर तो कोई एंड ही नहीं है, फिर एवरीवन हैज़ इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ अ सेटिस्फाइड लाइफ. मैं एक और तरीके की ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हूँ, आप किसी और तरीके की ज़िंदगी से सेटिस्फाइड होंगे. एक बंदा शोहरत में खुश है, एक बंदा दौलत में खुश है, एक इक़्तिदार में खुश है, एक फ़कीरी में खुश है, एक रूहानियत में खुश है. सो देयर इज़ नो क्लियर लाइन अवेलेबल. टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल पेशेंट्स वी मस्ट फॉस्टर मोर पॉजिटिव एटीट्यूड. फॉस्टर्स कहते हैं नरिश, फ्लरिश, इन मानों में आते हैं. मोर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल with serious and incapacitating illness and conditions. Despite the ravages of their diseases, ravages कहते हैं destruction, तबाहकारियाँ, they are still our fellow human beings and deserve our care and respect. We must also enact positive legislation that will protect vulnerable people from those who consider their lives meaningless or too costly to maintain and who would cause their deaths by holding life-sustaining care such as food and water. So, अब हम आ रहे हैं जी इसके क्वेश्चंस पर. द टोन ऑफ द ऑथर कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज प्लीडिंग, नहीं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा वो किसी से. आर्गुमेंटेटिव बहस उसने एक दो चीज़ों पे की है, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो उसने बहस की नीयत से ये जो पैसेज है वो नहीं लिखा. हमने याद रखें, हमने क्या करना है, ओवरऑल टोन पैसेज की जो है वो चूज़ करनी है. इनफैक्टिक कहीं उसने अथॉरिटेटिव एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया. एंड देन इनफैक्ट कंपैशनेट इज़ द ओनली ऑप्शन. सो अगर हम पैसेज 1 पे जाएंगे, मैं लिख देता हूँ. पैसेज 1 पे जाएंगे तो सी ऑप्शन पहले की जो है कंपैशनेट.
कंपैशनेट क्या होता है? मर्सीफुल, कि उसके एटीट्यूड उनकी तरफ क्या है? एक हमदर्दी क्या है? दैट दे शुड बी गिवन ट्रीटमेंट, दे शुड बी प्रॉपर्ली looked after, and they should be given the needed medical care and treatment. Then in paragraph 3, the author finds starvation and dehydration induced euthanasia is to be more insidious because उसने बड़ा क्लियरली लिखा था incapacitated people, और उसकी जो अगर मैं एग्जैक्ट लाइन बताऊं, लाइन नंबर 6 पर आए, they usually involve the deliberate killing of ill or incapacitated persons by relative or friends who plead that they can no longer bear to see their loved one suffer. Although such killings are a crime, the perpetrators are often dealt with leniently by our legal system, and media usually portrays them as compassionate hero. ठीक है, तो ये किन लोगों के साथ करते हैं? इनकैपेसिटेटेड लोगों के साथ. इट ऑफन इन्वॉल्व्स दोज हु कैन नॉट प्रोटेस्ट. सो यहाँ भी दूसरे की भी क्या होगी? हमारी ऑप्शन सी ही बनेगी. अब देखिए, अगर आप लाइन नंबर 3 पैराग्राफ 3 पे जाएं, the seeming acceptance of active forms of euthanasia is alarming, but we face a bigger, more insidious threat from the passive form of euthanasia. Every year in hospitals and nursing homes around the country, there are a growing number of documented deaths caused by caregivers withholding life-sustaining care, including food and water from vulnerable patients who cannot speak for themselves. थर्ड पैसेज की लास्ट लाइन जो है वो और भी ज़्यादा क्लियरली आपको बता देती है, क्योंकि यहाँ पे हमने पैसेज 3 पे कन्फाइन होकर काम करना था, तो वो बड़ा क्लियरली बता रही है कि वो लोग जो अपनी बात खुद नहीं कर सकते. देन यूथनेसिया इज लीगली कंसिडर्ड टू बी अ क्रिमिनल एक्ट. ये लाइन 3 में नहीं हुई बात. द पब्लिक एटीट्यूड टुवर्ड यूथनेसिया इज बिकमिंग मोर पॉजिटिव. पैराग्राफ 3 में ये बात नहीं हुई. द पेशेंट हैज आस्क्ड टू डाई विद डिग्निटी. पैराग्राफ 3 में ये बात भी नहीं हुई. एज यूज्ड इन पैराग्राफ 3, व्हाट इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर इंसीडियस? मैंने आपको पहले भी बता दिया था. इट इज ट्रेचरस, बीटा ऑप्शन, गद्दारी, मक्कारी, कनिंग, क्लेवर के मानों में जो है वो आता है. आपने उसमें वो पढ़ा हुआ है मिस्टर चिप्स में, वो कहते हैं कि गिविंग सेम एंड सेम लेसन अगेन हैव फॉर्म्ड अ ग्रूव in his life in which the other affairs of his life adjusted themselves with insidious ease. ठीक है. मिस्टीवियस कहते हैं शरारती, सेडक्टिव कहते हैं समथिंग दैट बेसिकली डैमेजेस योर सेंसेस, एपरेंट को कहते हैं बड़ा वाजे. तो ट्रेचरस एटीट्यूड इज द राइट वर्ड. द ऑथर मेंटेन्स दैट डेथ बाय विदहोल्डिंग केयर इज, कि अगर आप किसी की मेडिकल ट्रीटमेंट रोक के किसी को मारते हैं तो ये केयर किसने, ये तरीक़ेकार कौन रिक्वेस्ट करते हैं? लार्ज कन्फाइंड टू हॉस्पिटल्स नहीं, वो मिनिमम स्मॉल कन्फाइंस कहता है. लार्जली कन्फाइंड टू टर्मिनली इल, कि सिर्फ टर्मिनली इल लोगों को मारा जाता है? नहीं. ठीक है. इज़ ऑफन रिक्वेस्टेड बाय फैमिली मेम्बर्स, ये उसने जो है वो पीछे कहा हुआ है कि सबसे ज़्यादा रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स ही इसको प्रोपगेट करते हैं. सो एक बार फिर हमारी ऑप्शन क्या बन रही है? सी. As used in paragraph 7, which is the best definition of abridged? Abridged curtailed के मानों में आता है. ट्रिम भी आ सकता है, लेकिन ट्रिम कहते हैं फिजिकली किसी चीज़ को काटने को, तो curtail जो है वो ज़्यादा है. अब लेंथर्ड और एक्सटेंडेड, तो उसकी ज़िंदगी के चांस पैराग्राफ 7 में आप देखें कि आप उसकी अगर नो वन इज़ द राइट, ये इसमें है जी आपके पैराग्राफ 7 में देखें, द बेसिक राइट टू लाइफ शुड नॉट बी एब्रिज्ड बिकॉज समवन डिसाइड्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ख़त्म करना, उसको महदूद करना. सो यहाँ भी आपके ऑप्शन बी curtailed विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर ज़िंदगी छीनने की बात हो रही है. लेंथन और एक्सटेंडेड तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता, तो ट्रिम और कर्टेल में ही आपको चॉइस करनी है. तो ट्रिम क्या होता है? फिजिकली काटना किसी चीज़ को. ठीक है, आप अक्सर कहते हैं बालों की ट्रिमिंग करना, तो ये है फिजिकली किसी चीज़ को काटने. कर्टेल होता है महदूद करना, लिमिटेड करना. यूजिंग द पैसेज एज अ गाइड, इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑथर वुड फाइंड यूथनेसिया
लेस ऑब्जेक्शनेबल, कि उसके लिए एक्सेप्टेबल होगा यूथनेजिया कब, द पेशेंट्स डेथ इज इमिनेंट। हाँ, इस पर भी उसने कहा है कि अगर हमें लग रहा है कि उसकी मौत यकीनी है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें उसको बचा लेना चाहिए, मतलब बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यूथनेजिया से ट्रीट कर देना चाहिए। द पेशेंट हैज़ लेफ्ट इंस्ट्रक्शन इन अ लिविंग विल नॉट टू प्रोवाइड केयर। हाँ, कहते कि अगर लिविंग विल है तो वो तो लीगल है। एक बंदा खुद कहता है कि जी मैं नहीं जीना चाहता, तो ठीक है, उसको अलाउड है। द पेशेंट रिफ्यूज़ेस टू एक्सेप्ट नरिशमेंट, कि अगर वो खुद कहे कि नहीं मैंने दवा नहीं लेनी, मैंने कुछ नहीं करना, तो फिर भी क्या है, फिर भी हमारे ख्याल में बात, ऑथर के ख्याल में बात क्या है, दुरुस्त है, फिर मार देना चाहिए उसको। तो फिर हमारे पास ऑप्शन ये तीनों ही जब सही हैं तो फिर हम कौन से ऑप्शन नीचे चूज़ करेंगे, हम ऑप्शन चूज़ करेंगे डी, 1, 2 एंड 3। द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ 7 इज दैट lawyers will be able to prosecute or define caregivers। ठीक है, पैसेज 7 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये तो नहीं है लॉयर्स की, तो उसने कहीं बात ही नहीं की। नो कॉम्प्रिहेंसिव राइट और रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ यूथनेजिया विल एग्जिस्ट, ये उसने थोड़ी सी बात की है, ठीक है, जब उसके देयर इज़ नो लॉजिकल प्लेस टू ड्रॉ द लाइन, तो थोड़ी बहुत बात है, लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात सी है, यूजिंग अ सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड विल मेक द डिसीजन टू एंड एन इंडिविजुअल्स लाइफ आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी कहते हैं क्वेश्चनेबल, वल्नरेबल, जिस पर कोई डिबेटेबल बात की जा सके। सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड क्या होता है, जो सबके लिए यूनिफॉर्म ना हो। जैसे मैंने आपको कहा कि हर एक के लिए कामयाब ज़िंदगी की डेफिनेशन कुछ और है, ठीक है। आप किसी क्रिकेटर से पूछेंगे तो वो उसके लिए कामयाब ज़िंदगी क्या है कि वो बहुत ज़्यादा रन्स बना ले, बहुत ज़्यादा विकेटें ले ले। एक पॉलिटिशियन से पूछेंगे तो उसके लिए कामयाब ज़िंदगी की डेफिनेशन क्या है कि वो इक़्तिदार में चला जाए। एक उस्ताद से पूछेंगे तो वो उसकी ज़िंदगी में कामयाब, उसके ख्याल में कामयाब ज़िंदगी क्या है कि जो उसके स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए। तो ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। तो सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड जो है वो क्या करेगा, डिसीजंस को आर्बिट्रेरी बना देगा, उसको क्वेश्चनेबल बना देगा। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे है जी नंबर 8 पे, in the final paragraph the authors writes, despite the ravages of the disease they are still our fellow human beings and deserve our care and respect। ठीक है, इस लाइन का मेन पर्पस क्या है, the main purpose of this statement is to prove a previous argument। previous argument तो उसने दिया ही कोई नहीं। illustrate an example, example भी इस लाइन में कहीं भी मौजूद नहीं है। gain से लेटर स्टेटमेंट कि पहले प्रिपेयर कर देना है टेस्टिफाई करने के लिए, बाद में भी उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। जस्टिफाई एन अर्लियर स्टेटमेंट, यस, ठीक है जी, उसने पहले एक स्टेटमेंट दी, ठीक है, और उसके बाद जो है वो फाइनल पैराग्राफ में नॉर्मली भी हम क्या करते हैं, आप कॉमन सेंस से भी अगर आप उसको करेंगे तो फाइनल पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, ऊपर जो सारा आर्ग्यूमेंट दिया होता है उसको क्या करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारी ऑप्शन क्या बनेगी, दैट विल बी डी। विद होल्डिंग लाइफ सस्टेनिंग केयर, ये तो बिल्कुल उसने स्टार्ट में बता दिया था, दैट इज पैसिव फॉर्म ऑफ यूथनेजिया। ठीक है जी, पनिशेबल ऑफेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। टू मेक पेशेंट्स इनवल्नरेबल टू डेथ, इनवल्नरेबल कहते हैं बचा लेना, तो यूथनेजिया उन्हें बचा तो नहीं रहा। डेस्परेट ऑल्टरनेटिव टू यूथनेजिया, देखिए पैसिव का मतलब होता है टू रिसीव, ढीला ढाला, लूज, लेजी, तो वो डेस्परेट तो नहीं हो सकता। जो चीज़ लेजी होगी वो कभी भी डेस्परेट नहीं होगी। सो ये तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली और हमारे पास सही ऑप्शन आ जाएगी। द कोर्ट फाउंड दैट यूथनेजिया केस कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इफ, उसने कोर्ट ने क्या कहा कि यूथनेजिया का केस जो है वो नहीं बनता, कब, इफ द डिसीजन मेकर्स एंड द मेडिकल स्टाफ आर इन कॉन्करेंस। वो उसने कहा भी था, ऑप्शन ए ही हमारी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और उसने कहा था कि अगर उन दोनों को ही कोई एतराज़ नहीं है, ना मेडिकल वालों को और ना उनको, तो फिर क्या है, फिर हमें यूथनेजिया जो है वो अलाउ करना चाहिए। बल्कि कोर्ट ने तो ये भी कहा कि इसके अगेंस्ट जो है वो किसी अपील की इजाज़त भी जो है वो बुनियादी तौर पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, सो दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन फॉर टुडे FLT। और बिल्कुल आखिरी देने कोशिश करें, एफर्ट करें, ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप इसमें जो है वो सक्सेसफुल हों।
विशिंग यू ऑल द बेस्ट बेटे, थैंक यू।